Good morning to you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Yes, good morning. So today we will try to solve some problems related with K-map so that you will get more familiar with that portion. Okay. Let me share the whiteboard. Is the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. So in last class, I have given you one homework, and that was related to bidirectional shift register. So how many of you have gone through that? Please raise your hands. So what I have told, I think all of you have listened, that I have asked that I have in the last class I have given you an assignment to go through the bidirectional register. So how many of you have gone through that? Please raise your hands. Okay, so only 2 persons. बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है. Good morning, sir. Good morning. So all of you have to study the things, otherwise it will be difficult for you. क्योंकि आप सभी को ये पता है I think all of you have to know and all of you know already that you have to face competition. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले. वॉइस ब्रेक हो रहा है. Am I audible now clearly? Am I audible now? Yes, sir. Okay. So ये जरूरी है कि आप लोग पढ़ाई करते रहो. ऐसा नहीं कि एक दिन छुट्टी हो गई तो उसको बस छोड़ दिया ऐसे ही. सो आप सभी को पता है कि आप लोगों को कंपटीशन फेस करना है, सिर्फ डिग्री नहीं लेना है. सो
whatever work you have is given to you, you should go for that. और जो भी पढ़ाई हो रही है, whatever is going on in your classes, you should revise all those things in regular basis. Otherwise, it will be very difficult to face competition, and you will go for 1 or 2 years after your BTech for the same type of things which are going through in your classes. हाँ ठीक है, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग जाकर फिर से कंपटीशन के लिए कोचिंग्स ज्वाइन करेंगे और ये करेंगे, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर belongs to a very average family, and you have to compete when you have degree in your hand. आपके पास जिस समय डिग्री हो उस समय तक आपके पास हाथ में जॉब भी हो. ऐसा नहीं है कि आप लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद 1 साल 2 साल जाकर कोचिंग्स में तैयारी कर रहे हैं. ओके, सो जो भी काम दिया जाता है उसे आप लोग करिए. Okay, so I am going through some of the problems. Okay, the problem is question is that you have to firstly you have to represent the following Boolean expressions in K-map and simplify it. Okay, so the first question is why ABCD equals ABC plus B bar CD plus BD. Okay. Is the question visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please tell me very first step that what I have to do or what you have to do. पहले तो सर K-map ड्रॉ करेंगे सर. हाँ, K-map ड्रॉ करेंगे. उसके पहले कुछ करना होगा. तो सबसे पहले वो कर लेंगे 0 0 0 1 1 1. ये 0 0 0 1 1 1 क्या है? भरत, उत्तम. ये 0 0 0 1 1 ये 4 वेरिएबल में ऐड करेंगे तब ना. उसको टेबल के फॉर्म में करेंगे, आप ये कह रहे हैं उत्तम? नहीं सर, मतलब ये ABC है सर. यस. तो ये 3 वेरिएबल है ना सर, तो उसको 4 वेरिएबल में लाना होगा ना. ओके, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा. मतलब एक्चुअली हमने यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन में, इन द क्वेश्चन यू कैन सी दैट हियर ABCDY is a Boolean expression which is composed of 4 variables. Okay, and what you can observe here that we have 3 terms over here. Okay, and all the 3 terms, all the variables are not present, है ना? So what I have told that यहाँ पर 3 terms हैं. Okay, इन तीनों terms में अगर
चूंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, सो ये चारों वेरिएबल्स सारे टर्म्स में होने चाहिए। ओके, क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये जो है ये एक्सप्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हमें पहला काम क्या करना होगा? कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, so how we can convert this into standard form? So we have a b c plus b bar c c d plus b d. So in a b c, which variable is not present in the first term? This is the first term. D sir. This is the second term. D. Yes, this is the third term. So here in a b c, d is not present. So यहाँ पर c के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 हम मान सकते हैं, a b c डॉट 1 मान सकते हैं। ओके, 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट 1 कैन इट बी रिटन एज d प्लस d बार। d प्लस d बार का वैल्यू क्या होगा? 1 सर। 1 होगा हमेशा, ये हमेशा ही 1 होगा, ऑलवेज। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप d का यहाँ पर वैल्यूज रखकर देखिए, यहाँ पर आप d का वैल्यूज रखकर देखिए, सॉरी, यहाँ पर आप d का वैल्यूज रखकर देखिए। एक बार आप d का वैल्यू d इज इक्वल टू 0 रखिए, देखिए क्या आता है। एक बार आप d इज इक्वल टू 1 रखिए, देखिए क्या आता है। दोनों ही केस में 1 ही आएगा आउटपुट। ओके, सो हम यहाँ पर d के जगह में क्या लिख सकते हैं? a b c d प्लस d बार। इन द सेम वे इन द सेकेंड टर्म b बार c d, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है? A. a एब्सेंट है, तो दैट is given as like this. So यहाँ पर b के बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ मान सकते हैं। So that 1 can be represented as a plus a bar, b bar c d, okay, plus bd. So here 2 variables are not present, which are a and c. So we can write it as a के लिए, a लाने के लिए a plus a bar लिखेंगे, और c लाने के लिए c plus c bar लिखेंगे। हमारे पास पहले से b और d अवेलेबल है। ओके, सो हम इसे सिंप्लीफाई करें। सो वी विल हैव a b c d प्लस a b c d बार प्लस a नॉट a बार, a b बार c d प्लस a बार b बार c d प्लस हमने इसको जस्ट एक्सपैंड किया है। ओके, जस्ट इससे हमने एक्सपैंड किया है। Now we have 2 terms are present over here, so we will have a plus a bar को अभी रखते हैं। ठीक है, अभी इस वाले टर्म से पहले कर लें। So we will have bc, so we have bcd plus bc bar d। ओके, इसे फिर से लिखें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन सेम रहेगा, नीचे कुछ टर्म्स बढ़ेंगे। सो वी हैव a b c d प्लस a b c d बार प्लस a बार c d प्लस a बार b बार c d प्लस यहाँ पर क्या आएगा? a b c d प्लस a बार b c बार d। अच्छा, यहाँ पर हमने a से दोनों को करना है ना, सो इसे बाहर हटा देते हैं। a इज मल्टीप्लाइड प्लस वी हैव a बार b c d प्लस a बार b c बार d। अगर कहीं गलत हो तो मुझे बीच में रोकिएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, हम क्या जानते हैं? a प्लस a इज इक्वल टू क्या होता है? सर ए होता है। a होता है। ओके, सो अगर हम ऐसे लिखें bc प्लस bc तो क्या होगा? BC BC. bc ही होगा। अगर ये 4 वेरिएबल में हो a b c बार d प्लस a b c बार d तो क्या होगा? सर ए बी सी बार डी होगा।
ए बी सी बार डी होगा। वेरी गुड। सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई टर्म अगर यहाँ पर एक बार और लिखा हुआ हो ए बी सी बार डी, ओके, ये 3 बार लिखा हो ये टर्म, तब भी क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए बी सी बार डी होगा। मीन्स रिपीटेशन ऑफ टर्म्स अगर हो तो हम उनके बदले में एक टर्म ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। सो इन द सेम वे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ टर्म्स कौन कहाँ कहाँ पर है। सर ए बी सी डी। ए बी सी डी यहाँ है और ए बी सी डी यहाँ है, तो इन दोनों के बदले और कहीं पर है ए बी सी डी? और कहीं नहीं है। सो इन दोनों के बदले हम ए बी सी डी लिख देते हैं। नेक्स्ट ए बी सी डी बार, और कहीं है ए बी सी डी बार? नो सर। नहीं है। सो नो सर। ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी है क्या कहीं और? नहीं सर, नहीं है। सो ए बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी है क्या रिपीटेशन? नहीं है। नहीं है। नो सर। प्लस ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, देन ए बी सी बार डी रिपीटेशन है क्या? ए बी सी बार डी कहीं नहीं है। नेक्स्ट ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर किसी भी टर्म का रिपीटेशन नहीं है। सो अब क्या करें? अब क्या करेंगे? 1 सर। सर ए प्लस ए बार 1 होता है सर, तो वो देखेंगे वो। ए प्लस ए बार 1 होता है। ओके, लेट मी मूव द पेज अपवर्ड। पेज ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई? कभी कभी ये व्हाइट बोर्ड हैंग कर जाता है। ओके, सो यहाँ पर तो अभी जो टर्म्स है यहाँ पर हमारे पास, अब इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, मिन टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज मीन बाय मिन टर्म? अगर कोई एक्सप्रेशन मान ले y इज इक्वल टू वाई ए बी सी में, अगर ए बी सी 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस ए बार बी बार डी प्लस, सॉरी नॉट डी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही वेरिएबल का है। सो प्लस नेक्स्ट इज ए बी सी बार। ओके, तो मिन टर्म होता क्या है? अगर हमारे पास दो वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें ए बी वैल्यू है और वाई आउटपुट है, तो ए बी का मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना हो सकता है? 4 सर। 4 होगा। अब मान लें कि इस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ओके, सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, इस एक्सप्रेशन को? तो आप लोग मुझे बताओगे मैंने कैसे लिखा है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट y इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। मैंने ये कैसे लिखा? ये y जो एक्सप्रेशन है, y जो आउटपुट है उसका एक्सप्रेशन ये होगा। मैंने कैसे लिखा ये? सर 0 को सर कॉम्प्लीमेंट मान लिए सर, ये कॉपी फॉर्म में कर लिया। 0 को कॉम्प्लीमेंट मान लिए। तो एक्चुअली मिन टर्म और मैक्स टर्म दो चीजें होती हैं। मिन टर्म और मैक्स टर्म दो चीजें होती हैं। तो मिन टर्म मैक्स टर्म, मिन टर्म में हम अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए a लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए 0 लिखते हैं। मैक्स टर्म में उसका अपोजिट क्या करते हैं?
अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म के लिए 0 लिखते हैं और वेरिएबल के लिए 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है लाइक y इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन से फॉर्म में है, सॉफ्ट में है या पॉस में है? ये सॉफ्ट में है सर जो अभी लिखा। ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी लिखा है ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट है इसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म। ओके, तो अब मैंने जो मिन टर्म मैंने लिखा है, मिन टर्म जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन जो होता है उसको मिन टर्म के टर्म्स में लिखते हैं, मिन टर्म के फॉर्म में, और पॉस जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट को हम मिन टर्म के फॉर्म में लिखते हैं और पॉस को मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और मिन टर्म में अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए 1 और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए 0, और मैक्स टर्म में अनकॉम्प्लीमेंटेड के लिए 0 और कॉम्प्लीमेंटेड के लिए 1। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन सॉफ्ट के फॉर्म में है। सॉफ्ट के फॉर्म में मतलब मिन टर्म। ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए बी बार सी है, तो इसको अगर 1-0 के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी बार को 101 10 एंड सी इज 1। ओके, मैंने 1 कि जो भी अनकॉम्प्लीमेंटेड जो वेरिएबल है, अनकॉम्प्लीमेंटेड मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे 1 और जिसके ऊपर बार है उसको लिखेंगे 0। ओके, और ए बी बार सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी बार सी है, सॉरी ए बी सी बार है, नॉट ओके, बी बार सी बार रख देते हैं। ओके, ए बी बार सी बार, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे हम 101 100 ए बी बार सी बार है। ठीक है, अच्छा 100। ठीक है, तो नाउ अब 101 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, सॉरी दिस इज द बाइनरी, ये तो बाइनरी वैल्यू है, इसका डेसिमल क्या होगा 101 का 101 का डेसिमल क्या होगा, 5 होगा, 5 सर, और 100 का 4 होगा। ओके, तो जो मिन टर्म होता है उस मिन टर्म को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को मिन टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M5 प्लस M4। ओके, और इसको और शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सिग्मा स्मॉल m 5 4। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है y, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, सिग्मा m 5,4। ओके, सो इन द सेम वे हमने जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का, जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करके मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सब अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता करना है, क्योंकि अब ये सॉफ्ट के फॉर्म में है या पॉस के फॉर्म में है, ये जो एक्सप्रेशन है वो सॉफ्ट के फॉर्म में है या पॉस के फॉर्म में, सॉफ्ट के फॉर्म में सर, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है। ओके, अगर ये सॉफ्ट है सो दिस expression can be represented in terms of main term. Now what is this a b c d, इसको अगर डेसिमल में लिखें तो मेन टर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, सर 111 1111। ओके, 1141, yes sir, it is m what is the decimal of this 1111, what is the decimal of this 1111, 7 15 15 सर, 7 होगा जब 3 1 होता ना, 4 1 होंगे तो 15 होगा, यस सर, प्लस अब इसे क्या लिखेंगे 1 1, सर 1110, सो डेसिमल में क्या लिखें अब
14 सर। 14। 14 नेक्स्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे? प्लस 11 11 sir. 11 sir 11 प्लस 4 sorry sir 4 नहीं 3 3 sir. प्लस 13 13 सॉरी M13 प्लस 7 M7 प्लस 5 sir M5. Okay, now we have represented this expression in terms of min term. Okay, तो हम इसे सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं। सिग्मा m कौन सा है सबसे M. छोटा? सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 5 3 3 sir 3 5 10 7 then 3 5 7 11 11 then 14 40. no sir 13 13 14 13 फिर 15 Okay, yes sir तो देख सकते हो कि वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास था पहले जो कि वेरिएबल्स के टर्म्स में था, हमने उस एक्सप्रेशन को क्या किया? मिन टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, यस, सो दिस वाज द एक्सप्रेशन which was ABC plus B bar CD plus BD. Now we have to represent. So जब ये चीज हमें मिल जाएगा, now we can represent this expression using K-map. Okay, तो हम एक K-map बनाते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है? 15 है। या फिर हमारे पास वेरिएबल्स कितने थे इस एग्जांपल में? इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने थे? 4 4 4 वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे के मैप में? 3 16 सर। 16, n यस। square ना sir हाँ, n स्क्वायर। n स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? n कितना है? 4 वेरिएबल 4 सर। 16। 4 और अगर 3 वेरिएबल हो तो 3 का स्क्वायर 9। इज इट राइट? no sir What is the formula? So what is the formula? If we 2 to the power n 2 to the power n. So 2 to the power n means n कितना है? 4। अगर 4 है तो 4 16। अगर 2 to the power 3, अगर 3 वेरिएबल होगा तो कितना होगा? 8। 2 to the power 2 होगा तो 4। ओके, so it is 2 to the power n, not n square. ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 4 हैं तो टोटल 16 बॉक्सेस बनेंगे के मैप में। सो लेट अस ड्रॉ दैट। सो एक ही प्रॉब्लम में समय निकल गया। Okay, so here we have to make a K-map with 16 boxes. So here are those 16 boxes. Now, how we can do the box numbering? We have variables as A, B, C, and D. Right here 0, 0, 0, 1, 1, 0 here and 1, 1 here. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, and 1, 1. Okay. Now we have to put the box numbers. So how we can do that? How we can do that? ABCD में LSB किधर है? 0
ओके मुझे बताइए कि ABCD में LSB कौन है, A है LSB या D है LSB? डी है सर। D LSB है। तो हम बॉक्स नंबरिंग शुरुआत तो यहीं से करेंगे। ओके क्यों करेंगे यहाँ से? क्योंकि आप ABCD का यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। A और B का वैल्यू 0 0 है इस पर्टिकुलर बॉक्स में, और CD का वैल्यू 0 0 है। तो ये बाइनरी हो गया। अब ये बाइनरी का डेसिमल क्या होगा? 0 ही होगा। तो हमने यहाँ बॉक्स में 0 पुट कर दिया। ओके नाउ बॉक्स नंबर 1 किधर होगा? यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा? जीरो के बगल में होगा या 0 के नीचे होगा? 1 0 बगल में सर 0 के बगल में। ओके लेट अस डू दैट। हम यहाँ पर देखते हैं AB का वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर बॉक्स में, 0 1। 4 हो जाएगा ना सर बगल। AB का वैल्यू कितना है? ये नीचे वाले बॉक्स में देखें तो यहाँ पर AB का वैल्यू 0 0 है और CD का वैल्यू 0 1 है। तो अब मुझे देखकर बताइए कौन से बॉक्स में 1 होगा, किसमें 2 होगा? 1 किधर होगा? 0 के साइड में या 0 के नीचे? सर 0 के साइड में। अभी भी 0 के साइड में बोल रहे हो। यहाँ पे मैंने जबकि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन लिख दिया हुआ है। 0 के नीचे। 0 के नीचे होगा ना, यहाँ तो हमें कॉम्बिनेशन। तो बॉक्स, ये जो बॉक्सेस हैं इन सभी में ABCD का वैल्यू डिफाइंड है। जो यहाँ पर हमने AB का वैल्यू मान लिया, अगर इस बॉक्स के लिए, यहाँ पर इस बॉक्स के लिए अगर हमें AB या ये बॉक्स नंबर मालूम करना है तो हम यहाँ पे देखना होगा कि ABCD का वैल्यूज क्या क्या है। तो AB का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 1 है। और CD का वैल्यू क्या क्या है? 0 1 0 1 है। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स का नंबरिंग क्या होगा? 1 1 0 1 का बाइनरी, सॉरी इसका डेसिमल 1 होगा 1 सर। इसका डेसिमल क्या होगा? 1 1 0 1 का डेसिमल 13 13 सर। 13 होगा। तो ये बॉक्स नंबर 13, ठीक है। तो इन द सेम Yes, sir. कैन फाइंड आउट द बॉक्स नंबरिंग्स, बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर 0 शुरू हुआ तो जिस साइड LSB है, LSB किधर है? LSB यहाँ D यहाँ पर है। तो जिस साइड LSB है 1 उधर ही होगा। तो यहाँ 1 होगा, देन यहाँ 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, देन यहाँ 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 14 एंड 15। ओके आप ये पता कर सकते हो वहां पर बॉक्स में जो 1 और A और B C D का जो वैल्यूज है वो वैल्यू पुट करके आप बॉक्स नंबरिंग निकाल सकते हो, बट उतने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट यहाँ पर नंबरिंग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू फिल दिस के मैप, वी हैव टू फिल दिस के मैप। तो हम के मैप को फिल कहाँ से करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ से, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जो नंबर्स अवेलेबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम के मैप में फिल कर देंगे 1 से। सो 3 5 7 11 13 14 15, 3 5 7 11 13 15 14 भी है, 14। ठीक है। तो ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन था, दैट रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो हमने के मैप से दिखा दिया, वो जो एक्सप्रेशन उसे हमने के मैप से दिखा दिया। ओके नाउ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्बिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। वो कॉम्बिनेशन 2 बॉक्स का हो सकता है, 4 बॉक्स का हो सकता है, 8 बॉक्स का हो सकता है, 16 बॉक्स का हो सकता है, लाइक दिस। ओके तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, एंड वी विल गो फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके वी हैव टू गो फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो प्लीज टेल मी दैट व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। वो 2 4 या 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 16 कॉम्बिनेशन हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 16 बॉक्सेज ही हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? लेट अस डू दैट। ओके सो वी हैव द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन। 8 का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बनेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लार्जेस्ट पॉसिबल होगा वो 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो लेट अस गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। The session will go. सर 5 12 7 15। ओके सो सेशन ओवर होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे, सेशन ओवर होता है तो।
So next combination will be Sir, 3, 7, 15, 11. and next एक जो वन है वो बॉक्स नंबर 14 बच गया, तो क्या करें? Sir, 15 or 14. Yes, combination of this 15 and 14.